Okay, good morning everyone. Screen is visible to you? Yes, sir. Okay. So in the last lecture, we have discussed about the interprocess communication. What is the race condition? What is critical region or critical section? And how to avoid the race condition by using a mutual exclusion. Okay. Can anyone tell me what do you mean by mutual exclusion? Can anyone tell me about the mutual exclusion? In mathematics, A union B is equal to phi, it's a mutual exclusive. Or we can say that A union B is equal to A plus B, or A intersection B is equal to phi. ये रवि क्या बोल के गया? Ravi, I Sir, am not teaching. I am not teaching you mathematics. I am teaching you operating system, and I ask mutual exclusion. Sir, I can say, sir. Yeah, Brajesh. सर आपने एक एग्जांपल दिया था कि अगर एक फूड शॉपकीपर है और एक दूसरे जगह सर फूड जो जूस मतलब बेचता है, तो उसके दूसरे एक दूसरे में मतलब किस तरह से मैनेज करना है, तो अपना डेटा किस तरह से शेयर करना है, या डेटा को किस तरह डेटा आइटम को किस तरह से शेयर करना है, तो यही सर एक म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअल एक्सप्रेशन। Okay, Bajrang. Sir, it includes sharing of participants among themselves itself. Okay. See guys, mutual exclusion आपको नहीं पता चलेगा तो बाकी की 6-7 थियरी वो नहीं पता चलेगी, क्योंकि उसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन के ऑप्शन ही है. ठीक है, इसलिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्लियर होना चाहिए. वो कब क्लियर होगा? जब रेस कंडीशन और क्रिटिकल रीजन आपको क्लियर होगा तब. यस उमंग. अरे इसमें दो प्रोसेस होता है, जिसमें एक प्रोसेस वेट करेगा जब तक एक प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए म्यूचुअल के. ओके गुड. जेनिथ. Sir, no two processes can exist in the critical section at every given point of time is basically mutual exclusion. ओके रिंकू. Yes, sir. This is a technique to maintain the condition of race, sir. Race conditions, sir. Okay. So to avoid the you have seen to avoid the race condition, we can use the mutual exclusion. I gave this example. Here, two trains are coming at this level, and this is the shared resource because this crossing is shared between these two tracks. So whenever this shared resource is accessed by two different process at the same time, then this lead to a critical region and it generates the race condition. To avoid this thing, what solution we have find? We found that we can stop any one train, let first train go, and then after another will go. So first ये ट्रेन जाएगी, ये कंप्लीट चली जाए, फिर इसको हम सिग्नल देंगे दूसरी ट्रेन को कि ये पहली ट्रेन पूरी चली गई, अब आप जा सकते हो, फिर उसका टर्न आएगा. सो दिस वे वी कैन use the mutual exclusion. Okay, do you have any query, any doubt or any question for the mutual exclusion? ये अभी क्लियर कर लो, क्योंकि इसके बाद जो भी सॉल्यूशंस है वो बेस्ड ऑन दिस ही है. Clear? I hope all of you are clear. You do not have any query in a mutual exclusion. Simple ही है, mutual understanding.
Okay, let's start with the next topic, that is the mutual exclusion implementation. Here you can see a list of proposals to achieve a mutual exclusion. It means mutual exclusion achieve करने के लिए इतने सारे proposal है हमारे पास, proposal है. It is applicable to particular situation. Whenever we have a particular situation, we can select any particular solution. It depends on application, it depends on a requirement. ऐसा नहीं कि एक solution हर जगह implement हो सकता है. It depends on nature of resource, nature of process, depends on a application. So remember this thing. So these all are the list of proposal to achieve a mutual exclusion: disabling interrupts, lock variables, trick alteration, Peterson solution, TSL instruction. By all this, we can achieve the mutual exclusion. Mutual exclusion, it means at a time only one process can enter into a critical region and others should be wait outside the critical region. If two processes are inside the critical region, then it will create the race condition or maybe deadlock or whatever. So वो अवॉइड करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन हम यूज करेंगे. क्लियर? So let's start with the first one, disabling interrupt. The idea behind disabling interrupt, this is the hardware based solution. Hardware based solution. So idea behind this solution, first we will disable all the interrupts, then after enter into the critical region so no one can disturb us or no one will try to enter into this critical region. That's why we disable the interrupts. Once you done your execution, and when you are leaving that critical region, at that time again enable that interrupts. So this is the idea to disable the interrupt. उसका मतलब क्या हुआ कि simple, yes Rinku, yes Rinku, सॉरी सर, बाय मिस्टेक से रेज हैंड हो गया. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम क्रिटिकल रीजन में एंटर हो तब पहले बार डिसेबल कर देते हैं इंटरप्ट. हार्डवेयर सॉल्यूशन है तो सभी इंटरप्ट डिसेबल कर देंगे. इट मीन्स जैसे एग्जांपल मैं दूं आपको, जैसे कोई भी क्लिनिक या कोई भी ऑफिस हो उसमें ओपन, रेस्टोरेंट में भी ओपन और क्लोज का होता है, ठीक है. उसमें आप एंटर हो तब ओपन होता है, फिर आप चेंज कर देते हो डू नॉट डिस्टर्ब और क्लोज. उसका मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल रीजन में आप चले गए और आपने सब कुछ डिसेबल कर दिया. सो नो वन विल एंटर इनटू योर रीजन. लेकिन जब आप बाहर जाएंगे तो आप डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड उल्टा कर देंगे या फिर क्लोज से ओपन कर देंगे, ठीक है. सो जब आप लीव कर रहे हो क्रिटिकल रीजन तो वो इनेबल करते जा रहे हो, ठीक है. चलो, तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया, ये ओपन और क्लोज बोर्ड वाला, उसमें कौन कौन सी मिस्टेक हो सकती है, तो बता सकता है? कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती है? सर पहला सिचुएशन ये होगा कि अगर सर दो पर्सन है तो सर सेम टाइम में या तो सर वो ओपन करेगा या तो सर वो क्लोज करेगा. तो एक सिचुएशन ये आ सकता है. ओके. उसके बाद सर म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंप्लीमेंट करने के लिए तो ये हम सॉल्यूशन लगा रहे हैं ना, तो दो प्रोसेस एक साथ तो ओपन नहीं करेगी, ठीक है. नहीं सर, वो एक सर एक ही टाइम करेंगे. यस क्रिस, इफ वी फॉरगेट टू इनेबल, होता ही है ना ऐसे रियल लाइफ में कि कभी हम गए कहीं पे भी तो क्लोज कर दिया तो बाहर वाले ऐसे ही चले जाएंगे और फिर हम बाहर निकले तब उल्टा करना ही भूल गए तो
क्लोज टू ओपन करना भूल गए तो फिर क्या रहेगा? सपोज मेरी एक शॉप है, एक शोरूम है, ठीक है, कपड़े की एक बड़ा सा शोरूम है। दोपहर को लंच टाइम पे मैं वो ओपन टू क्लोज कर दे रहा हूँ, फिर लंच लेके उसको मैं ओपन करना भूल गया तो कितना नुकसान होगा मेरा? तो ये सेम इसमें होता है डिसेबलिंग इंटरप्ट्स में। हर चीज होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। डिसेबल करने से हमें कोई डिस्टर्ब तो नहीं करेगा खाने में, लेकिन प्रोसेस माइट नेवर इनेबल इंटरप्ट्स, सो क्रेशिंग सिस्टम, यहाँ पे हमारे मनी क्रेश हो रहे हैं मनी नहीं मिलेंगे तो माइट बी क्रेश हो सकते। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, want work on a multi-core multi-processor with 2 or more CPU। multi-processor का मतलब क्या हुआ? 2 or more CPU। तो वहां पे एक से ज्यादा प्रोसेसर हो। जनरली डिसेबल इंटरप्ट कौन करता है? CPU अपने प्रोसेसर पे, ठीक है। सपोज एक से ज्यादा प्रोसेसर है, प्रोसेस एक ने डिसेबल किया इंटरप्ट, लेकिन बाकी के दो तो अभी इनेबल ही है, तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। सो द चीप एज डिसेबलिंग इंटरप्ट ओनली affect only the CPU that executed the disabling instruction. The other ones will continue and can access the shared memory। यहाँ पे ये लाइन याद रखना है कि चीप एज डिसेबलिंग इंटरप्ट्स ओनली इफेक्ट्स ओनली द सीपीयू दैट एग्जीक्यूटेड द डिसेबलिंग इंस्ट्रक्शन। जिस सीपीयू ने डिसेबल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किया है उसके ही इंटरप्ट सारे स्टॉप होंगे, दूसरे के तो आपको इनेबल ही रहेंगे, तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा रूम है, हॉल, उसमें 3 डोर है, 3 डोर है, उसमें 3 डोर में एक डोर पे आप रह रहे हो, दूसरे डोर पे मैं, तीसरे डोर पे कोई और है, ठीक है। तो आपने डिसेबल इंटरप्ट किया, आपने क्लोज कर दिया डोर और आप एंटर हो गए क्रिटिकल रीजन में, रूम में, ठीक है। अब आप चाहते हो कोई और एंटर ना हो सके, आपको कुछ एग्जाम आ रही है तो आपको रीडिंग करना है, सो नो वन कैन डिस्टर्ब यू, सो आपने क्लोज कर दिया, लेकिन आपने अपना रूम ही क्लोज किया, बाकी के 2 डोर ओपन है। तो मल्टी प्रोसेसर में यही हुआ, बाकी के 2 डोर में से कोई भी, आप शेयर्ड रिसोर्स है ये पूरा रूम, तो उसमें बाकी के डोर से कोई भी आ सकता है और आपको डिस्टर्ब कर सकता है। So this is the disadvantage in a disabling interrupts। Okay, I hope all of you are getting this thing। So this is the disabling interrupt। ये समझ में आ गया तो बाकी के सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं स्लोली जा रहा हूँ। If you are feeling that our speed in during all lectures is fast, then please let me know। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आपकी स्पीड फास्ट जा रही है तो थोड़ा स्लो जाएंगे, अदरवाइज इट्स ओके। सो दिस इज डिसेबलिंग इंटरप्ट। सो इससे म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपरली पूरा नहीं, इसमें कुछ तो दिक्कत आएगी ना। सो एज आई टोल्ड यू कि प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। नाउ सेकंड वन, ये जो एग्जांपल दिया वो अगर आप समझ गए हो तो दूसरा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड वन इज द लॉक वेरिएबल। यस, समवन इज हैविंग अ, यस, और आशीष कुमार इज हैविंग अ डाउट। यस आशीष। सर पिछले वाले एग्जांपल में सर एक चीज ऐड करना चाहते थे सर कि जब हम किसी रूम में इंटर किए सर, इंटर करने के बाद हमने डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया, ठीक है, और फिर हम बाहर निकल गए और हम भूल गए कि मतलब डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड हमको पलटना है और उसको ओपन में करना है या फिर क्लोज में करना है।
तो सर ऐसा हो सकता है कि फिर जैसे दूसरा बंदा आएगा तो उसको एनेबल कर पाए या फिर नहीं कर पाएगा, या फिर जो बंदा निकला है वही करेगा सर? वही कर पाएगा ना, बाहर से तो वो दूसरा बंदा आ रहा है, दूसरा स्टूडेंट जो भी आ रहा है कैंडिडेट, वो तो क्या देखेगा, डू नॉट डिस्टर्ब, तो हमें नहीं जाना है, हमें वेट करना है आउटसाइड, तो वो वेट ही करता रहेगा, अंदर तो कोई होगा ही नहीं। यस सर। ऐसा सर ऐसे रियल लाइफ में तो सर ऐसा होता है ना सर, ऐसे प्रोग्रामिंग में तो सर हाँ हाँ हाँ, होता ही है ना, इसलिए तो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए। डिसेबलिंग इंटरप्ट का मतलब ये फर्स्ट पॉइंट देखो प्रॉब्लम्स में, प्रोसेस माइट नेवर इनेबल इंटरप्ट्स देन क्रैशिंग द सिस्टम। क्रैशिंग सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि आप डू नॉट डिस्टर्ब बोर्ड चेंज नहीं कर रहे हो, तो अंदर कोई नहीं है, बाहर पूरी लाइन लगी है, वेट कर रहे हैं, तो ये पूरी जो सिस्टम है वो आपकी क्रैश हो सकती है, आपकी पूरी जो मैनेजमेंट है वो पूरा क्रैश हो सकता है। सो वो हमें कुछ अल्टरनेटिव उसका दूसरा कुछ सॉल्यूशन लगाना पड़ेगा। सो देयर आर दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू टू रीड दिस वन, लिस्ट ऑफ प्रपोजल्स टू अचीव अ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये सारे प्रपोजल्स है, उसमें से अकॉर्डिंग टू अवर एप्लीकेशन, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, यूजर्स नीड जो भी है उसके हिसाब से हम लेते रहेंगे, जो भी सॉल्यूशन आपको सुटेबल लगे वो, ठीक है। तो ये डिसेबलिंग इंटरप्ट होगा। लॉक वेरिएबल में मीन सजेट्स कि लॉक लगाना, लॉक लगाना, डू नॉट डिस्टर्ब की जगह मैंने लॉक लगा दिया। सो दिस इज द लॉक वेरिएबल, दिस इज द सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। डिसेबल इंटरप्ट वाला था तो वो हार्डवेयर सॉल्यूशन था, क्योंकि हार्डवेयर लेवल पे सीपीयू प्रोसेसर पे हम इंटरप्ट डिसेबल कर रहे थे, ठीक है। Now this is the software solution. Software solution in that everyone shares one lock. सबके साथ एक lock share किया होगा. If that when lock is 0, if the value of lock is 0, ठीक है, then process turns it into a 1 and enters into the critical region. तो सिंपल यही हुआ ना, 0 है तो आप एंटर कर सकते हो, तो आपने क्या किया, एंटर कर दिया और उसको 1 कर दिया। तो डू नॉट डिस्टर्ब में आपने ओपन देखा, तो ओपन इट मीन 0, आप 0 देख के अंदर जा रहे हो और फिर क्या कर रहे हो, उसको 1 कर दे रहे हो। तो यही एग्जांपल हुआ प्रीवियस वन। सो व्हेन एग्जिट क्रिटिकल रीजन टर्न लॉक इट टू 0, सो अगेन वापस से आप उसको 0 कर दे रहे हो, 1 से 0। सो प्रॉब्लम क्या इसमें आएगा, रेस्ट कंडीशन, स्पूलर डायरेक्टरी का एग्जांपल हमने अच्छे से समझा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या आएगा, सपोज दैट let's first understand to these topics and then come to the example. Suppose that one process reads the block and sees that it is 0. एक प्रोसेस ने लॉक को रीड किया और लॉक इज इक्वल्स टू 0 उसने रीड कर दिया। बिफोर इट कैन सेट द लॉक टू 1, अनदर प्रोसेस इज शेड्यूल एंड रन्स इट एंड सेट द लॉक टू 1। पहली प्रोसेस जो है उसने रीड किया 0, लेकिन वो चेंज करे 1, तब तक दूसरी प्रोसेस आके रन करके सेट कर देती है 1, वो देखती रह जाएगी। But when the first process runs again, it will also set the lock to 1, क्योंकि first process ने क्या किया, उसने तो read 0 ही किया था, तो उसके माइंड में तो यही है कि अभी तक कोई अंदर है ही नहीं, तो वो 1 कर देंगे। And two process will be in their critical region at the same time and it leads to the rest condition. Let me give you a best example. Suppose in a washroom, if lock is open, then you will enter into the critical region. So आप वॉशरूम में एंटर हो सकते हो और फिर क्या करते हो आप, 0 लॉक 0 से आप लॉक 1 कर रहे हो, उसका मतलब नो वन कैन एंटर इनटू द क्रिटिकल रीजन। फिर जब आपको बाहर निकलना है तो आप क्या करते हो, लॉक 1 से लॉक 0 कर दे रहे हो, सो अदर पर्सन कैन एंटर इनटू द वॉशरूम। ये फर्स्ट सिचुएशन। सो इससे हमारा म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा इसमें, प्रॉब्लम इसमें ये आएगा, सपोज आप आए वॉशरूम में, देखा कि ये ओपन है कि नहीं है, आपने देख लिया, चलो ओपन है, ठीक है।
तो आप क्या कर रहे हो, आप अपना कुछ सामान लेने के लिए आप रूम में जा रहे हो, ठीक है। फिर दूसरा कोई बंदा आ रहा है, वो देख रहा है लॉक ओपन है, तो कि हाँ वॉशरूम का दरवाजा ओपन है, तो वो सिंपली एंटर हो जा रहा है, लेकिन लॉक लगाना भूल जाता है। और वो लॉक लगाए, मीनवाइल आप अपना सामान लेके एंटर हो रहे हो, आपने तो लॉक क्या रीड किया था, 0। आपने क्या देखा था, दरवाजा ओपन है, और अभी भी दरवाजा ओपन है, तो आप दोनों क्रिटिकल रीजन में एंटर हो जा रहे हो, तो वो अगेन रेस कंडीशन जनरेट हो जाएगी। तो वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो अच्छे से प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन में 0 और 1 लॉक का जो सीक्वेंसी है वो अच्छे से होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? लॉक वेरिएबल, do you have any query, any doubt? Everyone paste your response into chat. If doubt, then write yes, no doubt, then no. Or if you required explanation, then tell me, so I will give you another example. Okay, yes, Bajrang बोल। सर ये थर्ड पैराग्राफ थोड़ा एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर। ये सपोज थर्ड और फोर्थ वो दोनों सिंक में ही है। चलो, सपोज दैट वन प्रोसेस रीड्स द लॉक एंड सीज दैट इट इज अ 0, ठीक है। बजरंग आपका ही एग्जांपल ले रहे हो, आप वन प्रोसेस हो, बजरंग रीड्स द लॉक, आपने वॉशरूम का दरवाजा देखा तो लॉक ओपन है, सीज दैट इट इज 0, तो आपने देखा कि ओपन है, 0 है, ठीक है। बिफोर इट कैन सेट द लॉक टू 1, अनदर प्रोसेस इज शेड्यूल्ड। सो यहाँ पे बिफोर इट कैन सेट लॉक टू द 1, आप लॉक 1 करो, उससे पहले आप कुछ सामान लेने के लिए, फेस वॉश लेने के लिए रूम में जा रहे हो, ठीक है। और आपने क्या रीड किया, ओपन है, तो मैं जब फेस वॉश लेके आ रहा हूं तब मैं एंटर करके लॉक कर दूंगा, ठीक है। मीनवाइल अनदर प्रोसेस इज शेड्यूल्ड, रन्स एंड सेट्स द लॉक टू 1। दूसरी प्रोसेस आ रही है, उसने एंटर कर दिया, अभी मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं, एंटर कर दिया और वो लॉक लगाए उससे पहले, वो सेट 1 करे उससे पहले आप फेस वॉश लेके आ जा रहे हो, और आपने रीड किया था 0, तो आप भी अंदर घुस जा रहे हो, तो दोनों अंदर हो गए। अब दोनों बोलेंगे कि मैं 1 लगा दूं लॉक, क्योंकि आपने 0 रीड किया था, आप लगा देंगे, उसने भी 0 रीड किया था, इसलिए तो वो एंटर आपके पहले ही हो गया और वो 1 लगा रहा है। हम ऐसा इमेजिनेशन कर रहे हैं कि वॉशरूम बहुत बड़ा है, उसमें 2 पार्टीशन है, सो जो पहले घुस गया वो बंदा कहीं और पे है, वो आपको विजिबल नहीं है, ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड व्हेन द फर्स्ट प्रोसेस रन्स अगेन इट विल आल्सो सेट द लॉक टू 1, सो दोनों ने 1 लगा दिया, तो क्या हुआ कि एक ही वॉशरूम में 2 बंदे हो गए, सो 2 प्रोसेस विल बी इन देयर क्रिटिकल रीजन एट द सेम टाइम, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो सेटिस्फाइड हुआ ही नहीं। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। क्लियर बजरंग? यस सर, क्लियर। ओके, सो इसका सॉल्यूशन हमें क्या लाना चाहिए? सिंपली बाय अप्लाइंग अवर कॉमन सेंस, कि हम ये कर सकते हैं कि जैसे आपने 0 देखा आप 1 कर दो, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो सकता है। दूसरी चीज, अगर आप कुछ लेने जा रहे हो रूम में, तो आप कुछ ऐसा सेट करके जाओ कि दूसरा बंदा अंदर घुस ना पाए, तो वो कुछ हमें अलग मैकेनिज्म सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो ये लॉक वेरिएबल ये हो गया, ठीक है। सो इससे रिलेटेड अब अभी आपने देखा कि डिसेबलिंग इंटरप्ट, लॉक वेरिएबल, बोथ आर द सिमिलर, सो ऑल प्रपोजल विल बी सिमिलर बिकॉज वी आर ट्राइंग टू अचीव दी म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करने के लिए हम पॉसिबल सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो तीसरा भी सॉल्यूशन इसके जैसा ही होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। सो बिफोर गोइंग टू अहेड इन अ थर्ड सॉल्यूशन, let me ask once again, if you are having a
doubt in a first two, then you can ask. Otherwise, we will move. This is the software solution, lock variable. Now third, strict alteration. Strict alteration. Name suggests its meaning. Strictly alternate कुछ होना चाहिए. यहाँ पे देखो लॉक लगा दिया 0 और 1, किसको पता कौन वो कितना टाइम लेगा. वो तो ठीक है, टाइमर पे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे. लेकिन 3-4 प्रोसेस एक साथ आ गई तो सपोज आप 4 लोगों ने वॉशरूम ओपन देखा, तो आप 4 लोग ओपन देख के अपने अपने रूम में जा रहे हो फेस वॉश लेने के लिए. ठीक है. मीनवाइल 5वां बंदा आके घुस जाता है, या फिर आप चारों एक साथ आ रहे हो, तो किसका टर्न पहले आएगा? वो कंफ्यूजन हो जाएगा ना. तो रेस कंडीशन अगेन हो सकती है. सो म्यूचुअली हमें देखना पड़ेगा कि कौन किसका टर्न पहले आएगा. सो फॉर दैट वी हैव अ स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, and for that we will maintain one variable, that is the turn, whose turn is to enter into the critical section, critical region. So we will maintain one turn variable. So here integer variable turn, which keeps the track of whose turn is to enter the critical section. किसका टर्न आएगा critical region में enter होने के लिए, उसके लिए turn variable. Now initially कुछ तो वैल्यू सेट करनी पड़ेगी ना कि बाकी सबका टर्न 1 कर देंगे तो हो जाएगा. चलो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग वो डिफरेंट थिंग है, अभी म्यूचुअल एक्सक्लूजन सीख रहे हैं. ठीक है. इनिशियली टर्न इज इक्वल्स टू 0 सेट कर दिया मैंने पहले. टर्न इज इक्वल्स टू 0, सबका 0. नाउ प्रोसेस 0 इंस्पेक्ट्स टर्न, वो टर्न की वैल्यू रीड कर रहा है प्रोसेस 0 एंड फाइंड इट्स टू बी 0. लॉक वेरिएबल की तरह ही फाइंड इट्स टू बी 0 एंड एंटर्स इनटू द क्रिटिकल सेक्शन. नाउ प्रोसेस 1 also finds it's to be 0 and therefore sites in a therefore it sits in the loop continuously testing turn to see when it becomes a 1. म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे होगा कि एक प्रोसेस अंदर है तो दूसरी प्रोसेस वेट करेगी. कब तक वेट करेगी और कैसे पता चलेगा कि फर्स्ट प्रोसेस बाहर निकल गई क्रिटिकल रीजन से? एवरी टाइम वी नीड टू चेक दैट कंडीशन. सो प्रोसेस 0 यहाँ पे क्रिटिकल रीजन में एंटर हो गई. देखो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में प्रोसेस 0 इंस्पेक्ट टर्न फाइंड्स इट टू बी 0 एंड एंटर्स इनटू क्रिटिकल सेक्शन. सो यहाँ पे प्रोसेस 0 एंटर हो गई तो प्रोसेस 1 एंटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रोसेस 1 एंटर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए. सो प्रोसेस 1 also find it to be 0 and therefore sits in loop continuously testing turn to see when it becomes 1. So continuously testing a variable until some value appears is called a busy waiting. आप continuously चेक कर रहे हो कंडीशन, तो उसको बिजी वेटिंग बोलते हैं. बिजी वेटिंग इट मींस जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक आपको वेट करना पड़ता है. व्हेन प्रोसेस 0 एग्जिट्स फ्रॉम क्रिटिकल रीजन इट सेट्स टर्न टू 1 एंड नाउ प्रोसेस 1 कैन फाइंड इट टू बी 1 एंड एंटर्स इनटू द क्रिटिकल रीजन. इट मींस 0 प्रोसेस बाहर निकलेगी तो वो टर्न को 1 कर देगा और प्रोसेस 1 का टर्न आएगा तो क्रिटिकल रीजन में प्रोसेस 1 एंटर होगी. सो इन दिस वे both processes get alternate turn to enter into the critical region. That's why it is known as the strict alteration. Let me give you one example analogy. Suppose this is our critical region. ये blue color जो है वो ऊपर critical region है. ठीक है. यहाँ पे 2 प्रोसेस है, प्रोसेस 0 एंड प्रोसेस 1. Suppose turn is equals to 0, तो वो यहाँ पे एंटर हो जा रही है क्योंकि स्ट्रिक्ट अल्टरेशन में अभी एक भी
ब्लू पार्ट में एक भी प्रोसेस नहीं है, सो प्रोसेस 0 यहाँ पे एंटर हो गई, ठीक है। अब दूसरी प्रोसेस यहाँ पे एंटर नहीं होनी चाहिए, वो हमें ध्यान रखना है। तो कैसे ध्यान रखेंगे, हम चेक करेंगे कंडीशन, अंदर कोई है तो आप बोलेंगे यस, तो आप 2 मिनट वेट करेंगे, फिर दूसरी बार अंदर कोई है, वेट करेंगे, अंदर कोई है, वेट करेंगे, कंटिन्यूसली वी विल टेस्ट दिस कंडीशन, तो उसको हम बिजी वेटिंग बोलते हैं। क्लियर, इसको बिजी वेटिंग बोलते हैं। जब ये प्रोसेस बाहर निकलेगी तो फिर उसको बोलेंगे नाउ इट्स योर टर्न, ठीक है। तो वो दूसरी प्रोसेस एंटर हो जाएगी और इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी, फिर तीसरी प्रोसेस का। सो स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, यहाँ पे हम 2 ही ले रहे हैं एग्जांपल में, ठीक है, प्रोसेस 0 एंड 1। तो अभी स्ट्रिक्ट अल्टरेशन आपको 2 प्रोसेस के लिए करना है। और यस, स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, पीटरसन सॉल्यूशन, these 2 proposal for the mutual exclusion are very most important. In an exam they will explain strict alteration in 3 marks पूछ सकते हैं, पीटरसन सॉल्यूशन 3 और 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये सॉल्यूशन याद रखना, इसमें तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, लॉक वेरिएबल और डिसेबलिंग इंटरप्ट्स में। तो अगर शॉर्ट में 1-2 मार्क्स में पूछे तो सिंपल ही है। स्ट्रिक्ट अल्टरेशन आ गया, स्ट्रिक्टली अल्टरनेट, अगर आपको ये समझ में आ गया स्ट्रिक्ट अल्टरेशन, तो अभी आपको ये कोड देखना है और मुझे एक्सप्लेन आपको करना है कि सर बाय दिस वे वी कैन achieve the mutual understanding. Here it is the code, while true into bracket, while turn is not equals to 0, then semicolon, then critical region, this is the function. क्रिटिकल रीजन में क्या बोले थे हम, सेट ऑफ पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम। सो अभी राइट नाउ हम ये डिस्कशन में नहीं जा रहे कि क्रिटिकल रीजन में कौन सा प्रोग्राम होगा और क्या होगा और व्हाटएवर, ठीक है। राइट नाउ वी आर कॉलिंग दैट फंक्शन, उसके अंदर जो भी प्रोग्राम हो, जो भी हो, सेड हो, जो भी है, क्रिटिकल रीजन, देन टर्न इज इक्वल टू 1 एंड नॉन क्रिटिकल रीजन, इट मींस यहाँ पे कुछ एस कंडीशन नहीं होगी। सो क्रिटिकल रीजन में जा रहे हो उसका मतलब वहां पे एक टाइम एक ही प्रोसेस होनी चाहिए। सिमिलर यहाँ पे टर्न इज नॉट इक्वल टू 1, critical region, turn is equals to 0, non-critical region, figure A and B. Here, a proposed solution to the critical region problem, figure A indicates process 0 and figure B indicates process 1. इसमें कुछ how we can achieve the mutual exclusion, that solution and that explanation you need to give me right now. Because now all of you are clear with the previous concepts. So ये code समझो पहले, I'm giving you time. I'm not asking immediately. I'm giving you time. Then raise your hand and start explaining. As you know the C language, so you can resolve this thing. But thing is that you are having a two concept. First is the code and second thing is the theory, that is about a mutual exclusion, strict alteration.
You need to combine these two things, and you need to try to understand, and you need to explain that thing. How this code will explain the mutual exclusion. I have provided this code to you. Okay, Om Detroja is present or absent? Om, are you there? No, he is absent. Okay, one more thing I want to ask everyone. आप सब गूगल क्लासरूम में इनवाइटेड हो ना? अगर नहीं हो तो अभी मुझे बता देना, लास्ट में एक्सक्यूज मत देना कि सर आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट. अगर किसी को इनविटेशन छूट गया है तो मुझे बता देना. आई विल इनवाइट देम इन अ गूगल क्लास. Okay, can anyone now? कोई भी नहीं? किसने हैंड रेज किया? हर्षिल. यस, हर्षिल एंड रिंकू बोथ. ओके, हर्षिल.
ओके बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। रिंकू यस सर। बता। सर यहाँ पे अगर दो का टर्न है, अगर टर्न फर्स्ट का सर आ रहा है तो वो क्रिटिकल रीजन में सर टर्न 1 को अलाउ करेगा सर। और ऐसे ही सर सेकंड वाले में सर अगर टर्न 1 नहीं है, मतलब 1 का टर्न नहीं आ रहा है, तो वो क्रिटिकल रीजन में सर टर्न मतलब 0 को अलाउ करेगा सर इसमें। और सर ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को भी ये सपोर्ट कर रहा है, वो इसलिए कि एक टाइम में एक ही प्रोसेस को मतलब अलाउ कर रहा है सर। दैट्स ऑल सर। ठीक है, ओके हर्षिल, डोंट वरी, I will ask in the next. Okay, in the next lecture, I will explain this trick alteration, this code in a detail.